Good afternoon, ladies and gentlemen, guys and girls. My colleagues Saran and Garima have tried to explain the topic quite lucidly. I don't intend to make things complex. Rather, I would like to communicate the existing issues which youth and young professionals, being one myself, what are the current issues they are facing, what they should do, and what are the intricacies they face while working in the field of disaster risk management. So, if looking on my slide, if I cite the population projection for India and state for 2011 to 2036, it says that proportion of working age population in India is expected to increase to 65% in 2036 from 61% in 2011. Our aim for having this training program with the title Engagement of Youth in Disaster Risk Reduction and Resilience is to figure out ways to channel out the thought process of this huge section of the demography, whom we call youth and young professionals, in right direction so that the losses and the damages induced by disaster events may be reduced to exponential extent. So, next thing, we all must be knowing that there has been discussion on several forums that the frequencies of disaster events are increasing with each passing year. What might be the reason for this? The first one we can say is that nowadays our media seems to be quite obsessed with the catastrophic events occurring in the country, such that no such event gets unnoticed or unaccounted for. Second, we hear people saying that it's climate change that is main causative factor for increased number of hydrometeorological disaster events. Third cause, which is often less talked, is about our reactive mindset to tackle disaster. Meaning as of now, our approach to counter disaster is कि पहले disaster हो जाने दो, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है या कैसे रिस्पॉन्ड करना है. अब हमारे दिमाग में कि ये डिफॉल्ट सेटिंग में ऐसा आया क्योंकि रिएक्टिव अप्रोच पहले प्रोएक्टिव क्यों नहीं आया. ये रिएक्टिव अप्रोच का दिमाग में आना पहले इसलिए ही ऑब्वियस है क्योंकि इट्स इजी टू कॉम्प्रिहेंड एंड अंडरस्टैंड. मतलब ये ज्यादा सेंस बनाता है कि प्रोएक्टिव बनकर जो डिजास्टर अभी नहीं हुआ है उसके बारे में पहले सोच के क्यों टेंशन लेना, जब होगा तब देखा जाएगा. बात तो सही है, बट यही हम मैच हार जाते हैं. Being proactive means instead of focusing on disasters, we focus on reasons that may cause disasters. Or in other words, try to understand disaster risk and take steps to reduce it. And another problem being reactive in handling disaster is that it derails the pace of development. मतलब रिएक्टिव होना या रिस्पॉन्स पर ध्यान देना यह सब तब होता है जब डिजास्टर ऑलरेडी हो चुका होता है. And there is large possibility that any given disaster event may wipe out the development made by the community in several decades. करते रहिए आप रिस्पॉन्स, या आपकी पीढ़ियों की सारी मेहनत से जो हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है वो एक झटके में खत्म हो जाए. So that's the disadvantage of being reactive in our approach by tackling disaster. So concluding, it's fair to say that it is better to manage disaster risk than to manage disaster risk. Okay, I think I might be making some sense here. Now, why I have discussed about this proactive reactive approach, यह सब डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि our society at present presumes the role of youth groups like NCC, NSS, आपदा मित्र only in disaster response. अगर हम एनसीसी की बात करें, एनएसएस की बात करें, एनवाईकेएस की बात करें, आपदा मित्र की बात करें, हमें यही लगता है कि इन्हें तो डिजास्टर रिस्पॉन्स में ही काम आता है इनका. डोंट यू थिंक इट्स बिट एब्सर्ड टू लिमिट द पोटेंशियल ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी which is more than 60% population wise to be utilized only in relief and response? Yes, it is absurd. So conclusively, the primary role of youth and young professionals in disaster should be understanding disaster risk, managing disaster risk rather than managing disaster itself. So we have successfully concluded that for youth and young professionals,
Understanding disaster risk is rather more desirable than understanding disaster, and youth and young professionals should be proactive in their approach while talking of disaster. Now, how to understand disaster risk? अब ये तो सब पता कर लिया कि डिजास्टर रिस्क को जानना जरूरी है, लेकिन डिजास्टर रिस्क को समझे कैसे? Let me take an example of ongoing pandemic. COVID-19 is a disaster, period. There is no doubt about it. COVID-19 is a disaster. So what could have been the positive factors of the risk of this disaster? के risk के क्या positive factors हो सकते हैं? मतलब COVID-19 जो इतना फैला पूरी दुनिया में, उसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स या उसके रिस्पॉन्सिबल एजेंट्स क्या रहे होंगे? इसके कई आंसर्स आ सकते हैं. Some of us will say that it is coronavirus that is responsible for catastrophe. Some of us will argue that COVID-19 doesn't spread only due to virus itself. It is spread due to the social proximity or from man to man. आदमी से आदमी को फैलता है. Some may even say that it is individual comorbidities that causing factors. वायरस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों से एक दूसरे का कांटेक्ट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता. लोगों की कॉमोर्बिडिटीज होती हैं जिनके कारण से ये उनको कोविड-19 से इन्फेक्टेड होते हैं. Many of us will say that it was due to the failure of administration or logistics arrangement which got our public health जो facility थी overwhelmed with the large number of cases. तो अपना जो लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट जो थोड़ा सा खराब था ड्यूरिंग पास्ट फ्यू मंथ्स सेकेंड वेव में, और जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थोड़ा सा देखा गया था कि फॉल्ट था, तो इसके कारण जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी थी वो गॉट ओवरवेल्म्ड विद द लार्ज नंबर ऑफ केसेस इन सिंगल. कुछ लोग ये कह सकते हैं. फाइनली कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि जितने सारे फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किए हैं उन्हें सभी को एक साथ शुड बी टेकन इनटू अकाउंट एंड नो सिंगल फैक्टर शुड बी ट्रीटेड कंपार्टमेंटली. अब होता क्या है, जब व्हेन वी हैव incomplete knowledge of disaster risk, we try to interpret it differently. आप स्क्रीन पे देखेंगे there is a graph of Dunning-Kruger effect which says that जब हमें कुछ नहीं पता होता है तब हमारा कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा होता है. तो जैसे जैसे हमें पता चलना शुरू होता है अपना कॉन्फिडेंस नीचे आता है, और when actually we start to gain wisdom, पढ़ना शुरू करते हैं फिर से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. तो जब हमें कुछ पता होता है हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, हमें लगता है जो हमने सीखा है वही सबसे ज्यादा है. आई मीन पहले जो अभी डिस्कशन किया कि डिजास्टर जो कोविड-19 में जो रिस्क के फैक्टर्स थे वो सबने अलग अलग बताए. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक दैट एज सेड बिफोर, वाईवाईपीज के लिए मतलब देयर कैन नॉट बी डिफरेंट वर्जन और डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ सेम रिस्क. पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट एज सेड बिफोर कि यूथ एंड यंग प्रोफेशनल के लिए डिजास्टर रिस्क को समझना जरूरी है, लेकिन सही रिस्क को समझना उससे ज्यादा जरूरी है. सो इट इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यूथ एंड यंग प्रोफेशनल टू अवॉइड रिस्क मिस इंफॉर्मेशन. It is their duty to go to the details and ask questions to themselves and if required to the concerned agency and try to get an idea what actual risk is and thereby try to reduce. तो पहली चीज हमने सीखी अंडरस्टैंडिंग रिस्क. रिस्क जरूरी है यूथ एंड यंग प्रोफेशनल्स को समझना. दूसरा है अवॉइड रिस्क मिस इन्फॉर्मेशन. नाउ वी हैव लर्न दैट हमारे पास करेक्ट रिस्क इंफॉर्मेशन आ गई है एंड नाउ हमारा काम है टू कम्युनिकेट इट. सो नाउ लेट्स कम विद सम रिस्क कम्युनिकेशन. 2006 में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आई थी जिसमें कोविड-19 जैसे पैंडेमिक के बारे में पहले ही मेंशन था. उसमें even if we talk about health emergency and disaster risk management framework of 2019, उसमें भी ऐसी कुछ वार्निंग दी गई थी और उसमें भी ऐसा मेंशन था कि पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कोई पैंडेमिक आ सकता है जो सारे स्ट्रेटा के जो सोसाइटी की सारे स्ट्रेटा को अफेक्ट करेगा. इफ यू टॉक अबाउट मैं 2013 के केदारनाथ इंसिडेंट की बात करूं, देयर आर सपोज टू बी रिपोर्ट अवेलेबल बिफोर हैंड जो ये बताती थी कि उत्तराखंड जैसी ट्रेजेडी हो सकती है. तो क्या होता अगर ये वार्निंग वर टेकन इनटू अकाउंट सब्सिक्वेंटली and subsequently remedial measures were taken? We could have averted grave social and economic loss. So youth and young professionals have this duty
to understand these disaster risks which have scientific backing. Mind you, scientific backing, ऐसा कोई भी information जिसका scientific backing है youth and young professional को नहीं लेना चाहिए. So any disaster risk which have a scientific backing, they should try to communicate it appropriate levels so that the required prevention and mitigation steps can be taken. Also, एक अलग प्रॉब्लम होती है किसी डिजास्टर इवेंट में कि देयर आर लॉट्स ऑफ रूमर, ग्रेप वाइन सर्कुलेटेड थ्रू सोशल मीडिया और भी जनरली से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी. It should be understand that the government sources are the only authentic sources during that carries the disaster related information, and youth and young professionals can play a significant role in interpreting this government policies to the masses. Maybe it would be about lockdowns, maybe ये lockdowns क्यों लगाए, maybe it would be about आरोग्य सेतु क्यों उसे इंस्टॉल करना जरूरी है, maybe it will be about vaccine. So all जितने भी इंफॉर्मेशन आपको डिजास्टर से रिलेटेड लेनी है, यूज ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्सेज. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को नहीं लेना है, सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट नहीं होना है. यूथ एंड यंग प्रोफेशनल का ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ऑथेंटिक सोर्सेज को पहचाने और उससे रिलेटेड लेवल्स पे पहुंचाने की रिलेटेड लेवल से फैलाने की कोशिश करें. Another thing which is evident in COVID-19 times is there's too much information available about any given topic in the public domain. We call it infodemic, information pandemic. मतलब जब मैं एग्जाम्पल लूँ कि जब इंडिया में कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन ही यही दोनों वैक्सीन अवेलेबल थी, पीपल वर प्लानिंग कि हम तो फाइजर की वैक्सीन लेंगे या जायडस या स्पुतनिक की वैक्सीन लगवाएंगे, बिकॉज इंटरनेट पे देखा है इंडिया की वैक्सीन तो है वही, बाहर की वैक्सीन अच्छी है. टू मच इंफॉर्मेशन लेड टू इनडिसीजन. उन्होंने तब वैक्सीन नहीं लगाई और अभी भी वैक्सीन नहीं लगाई है, जिसके कारण इंडिया का वैक्सीन रेट अभी भी 8% के आसपास है. तो जो लोग उस समय वैक्सीन नहीं लगवा पाए क्योंकि जो फाइजर का वेट कर रहे थे वो अभी भी नहीं लगवाए. तो टू मच इंफॉर्मेशन लेड टू इनडिसीजन. No point saying that youth and young professionals have lot to do in curtailing this infodemic. Infodemic is not a wrong thing. बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गलत नहीं होता है, बट उस पर एक्शन लेना है. अगर वो इनडिसीजन पे डिसीजन लेने में अगर जिसके कारण से दिक्कत हो रही है वो इंफॉर्मेशन गलत होता है. कुछ जैसे शरण ने पहले बताया था कि यूथ में सीआरआरपी ने कुछ काम किए थे, तो एक सीआरआरपी का बहुत अच्छा काम था कि हमने एक पब्लिक फोरम बनाया था जहाँ पे किसी को भी कोविड-19 में जो लोग आइसोलेटेड थे, सभी आइसोलेटेड थे, उसमें कुछ कहना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे लिख सकते हैं. उसे हम लोग पब्लिक फोरम में डालते थे. अब जैसे कोई यूनिवर्सिटी के कैंपस में फंस गया है, वो बाहर नहीं जा सकता है, कैंपस में ही उसको रहना है जब तक लॉकडाउन है, तो उसने अपना एक्सपीरियंस लिखा. इससे क्या हुआ, उसको तो अपने विचार व्यक्त करने का मिला ही. जिन लोगों ने उन्हें पढ़ा, जिनके साथ ऐसी ही घटना हो रही थी, उन्हें लगा कि दे आर नॉट अलोन इन दिस पर्टिकुलर मैस. उनके जैसे और भी लोग हैं. तो एक चीज सीआरआरपी ने की थी. दूसरा किया था कि हमने अवेयरनेस सीरीज शुरू की थी इन द लोकल लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज. जितने भी सीआरआरपी के मेंबर्स फ्रॉम द ऑल द फार रीचेस ऑफ इंडिया, उन्होंने अपने वर्नाकुलर, अपने लोकल लैंग्वेजेस में अवेयरनेस सीरीज, अवेयरनेस वीडियोस बनाए थे, जिसको हम लोगों ने पब्लिकली डिसेमिनेट किया था. और चलो अब नाउ वी कम टू फोर्थ थिंग दैट देयर आर टू मेनी एप्लीकेशंस अवेलेबल. एप्लीकेशंस बनाना अच्छी है बात है, लेकिन बहुत ढेर सारे एप्लीकेशन बनाना नहीं अच्छा है. इट हैज बीन टोल्ड दैट, पहले हमने बता चुका है कि आवर यूथ एंड यंग प्रोफेशनल्स आर इंक्विजिटिव एंड दे हैव दिस enormous zeal to solve world problems. अब होता क्या है कि ड्यूरिंग एनी prolonged disaster, जो काफी कुछ दिन के लिए चलता है, our youth tries to use their expertise in IT or other languages to solve current world problems by developing different web-based applications. Most of the time, they work in isolation without taking into account the previous progress already made in the similar field. अब इससे होता है क्या है, the end result is that we have too many apps in the market with similar usability. बहुत से ऐप हैं जो सेम काम करते हैं एंड ऑल्सो उनकी जो क्वालिटी है वो भी मीडियोकर है. So our youth and young professionals should try that
उनका जो काम ऐसा वो करे, इट शुड बी एडेंडम टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है, जो काफी मान्य सोल्यूशन है, उनमें कुछ ऐड कर सके, इंस्टेड ऑफ उनकी कंपटीशन बन के उन्हीं के जैसा एक पैरेलल ऐप खड़ा करें। और एक और इसमें प्रॉब्लम आती है कि देयर इज नो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल जब ऐसा कुछ वो एप्स बनता है, जिसके कारण से विच हैम्पर्स नॉलेज शेयरिंग, कि सामने वाले ने क्या काम किया है वो हमें जानने का नहीं मिल पाता, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। तो इट्स अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब हमारे यूथ एंड यंग प्रोफेशनल जो ऐसे काम में इन्वॉल्व है, उन्हें पहले पता होना चाहिए कि क्या ऑलरेडी इसमें डेवलपमेंट हो गई है। ताइवान में 2002 या फिर 2004 में कोविड-19 जैसा वायरस, सार्स वायरस आ चुका था, तो उन्हें पहले ही से आइडिया था कि अगर कोविड-19 आएगा तो क्या करेंगे। तो शुरुआती दौर में उन्होंने काफी अच्छे से मैनेज किया था, बट लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं था। इंडिया में हमने उसे स्क्रैच से शुरू किया। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें अपने रिसोर्सेज, अपना दिमाग, अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ऑलरेडी डेवलपमेंट क्या हो चुकी है उस फील्ड में, उसको पहले जाने। नेक्स्ट पॉइंट इज psychological and emotional support. Physical distancing is not social isolation. Lockdown, deaths of close ones, and social isolation have induced enormous psychological and emotional crisis in our society. There are scientific proofs that says that social isolation during pandemic was associated with negative consequences on mental health. There have been studies that reports elevated level of symptoms of depression and anxiety among individuals during early phases of pandemic. अब youth and young professionals can become ambassadors, psychological and emotional health ambassadors. They can form self-help groups, form support groups, कुछ ऐसे इनोवेटिव एप्लीकेशंस जो उससे काउंसलिंग हो सके वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल लूंगा मैं राहत का, फोटोस आप देख सकते हो। तो राहत इज अ फ्री सर्विस फॉर ऑल दोज डायरेक्टली इंपैक्टेड बाय डेथ, लॉस और मेंटल हेल्थ डिफिकल्टीज इन द इमीडिएट फैमिली ड्यू टू कोविड-19। और ये किनके लिए है? चिल्ड्रन फ्रॉम 15 to 17, young people from 18 to 25 and parents of the children up to the age 14 to 15। तो ये ऐप है जो काउंसलिंग करता है। और तो ऐसे यूथ एंड यंग प्रोफेशनल्स ऐसे कई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें जो हम इंडिविजुअल्स जो लोग फेस कर रहे हैं डिप्रेशन या फिर मेंटल प्रेशर, उनके इश्यूज को वैलियंटली हम सॉल्व कर सकें। अब एक टॉपिक आई वुड लाइक टू कवर इज यूथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसा कोविड-19 जो पैंडेमिक था, इट वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट प्रीवियसली परसीव्ड। हमें पता नहीं था कि कोविड-19 2018 में, 2019 से पहले हमें पता नहीं था कि कोविड-19 जैसा अगर कोई पैंडेमिक आएगा तो क्या स्थिति होगी। और एज ऑफ टुडे एक और ऐसा स्लो मूविंग डिजास्टर है जिससे हम, जो फूड सिक्योरिटी जैसा फूड सिक्योरिटी पर हो सकता है। अब as of today, most of our youth have shifted from their traditional jobs like agriculture and taken up corporate jobs in MNC. This has created an imbalance as there are more hands to less hands to feed and more hands to feed. जो पैदावार करने वालों की संख्या कम हो गई है और खाने वालों की संख्या ज्यादा हो गई है। Also the older generation जो अभी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, they are using obsolete techniques, ऐसी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं जो आउटडेटेड है, and this is hampering the ecosystem as well as there is continuous decrease in their productivity and yield. It is essential कि हमारे youth and young professionals should take up jobs like to get themselves in jobs in food entrepreneurship, promotion of healthy life, advocating equal opportunities, and creation of sustainable environment so that our aim of achieving sustainable lifestyle is really realized. So with this हमने क्या क्या कवर किया कि रिस्क को समझना जरूरी है, लेकिन रिस्क इंफॉर्मेशन को अवॉइड करना है। फिर हमें जब पता चला कि अगर हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स
से जब रिस्क की इंफॉर्मेशन आती है तो उसे हमें कम्युनिकेट करना है। फिर हमें पता चला कि सेम फंक्शनैलिटी के बहुत सारे ऐप्स हैं, तो हमारे यूथ एंड यंग प्रोफेशनल्स को चाहिए कि वो जितने भी ऐसे डेवलपमेंट्स हो चुके हैं उन्हें पढ़ें और उसका या तो एडेंडम बने या उसको कॉम्प्लीमेंट करें। पांचवा पॉइंट है कि यूथ एंड यंग प्रोफेशनल्स साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। एंड लास्ट वन इज दैट कि यूथ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल, सस्टेनेबल एजेंडा है, उसमें इनका रोल होना चाहिए, जिसका मैंने एक एग्जांपल दिया, फूड सिक्योरिटी। नाउ in my closing remarks, I would like to conclude the sessions with some of the quotes of one of the greatest Indian movies of all time, Run De Basanti. In concluding remarks, I would like to directly communicate to the youth and young professional DRM agencies and the policy making agencies, raising certain issues that the youth and young professionals face when they join the field of disaster risk management. First, तुम सिस्टम को बदलने की कोशिश करते हो, ये सिस्टम तुम्हें बदलता है। पहला, साइंटिफिक रिसर्च डजंट रीच द पॉलिसी मेकर। जैसा मैंने पहले बताया है कि हमारा यूथ है वो काफी इंक्विजिटिव है, स्मार्ट है। दे ट्राई टू फाइंड रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन टू प्रोमिनेंट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रॉब्लम्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स their research work doesn't receive suitable response and endorsement from the policy makers. अब होता क्या है, इस कारण से these youth and young professionals often reach out to the private enterprises for financial support, where they are often exploited. Their research work is often hijacked for meager compensation. Next, lowly paid jobs. Most of the jobs in disaster risk reduction field are lowly paid and often with stringent eligibility criteria. ऐसे क्राइटेरिया होते हैं कि जिसमें बहुत लोग फुलफिल ही नहीं कर सकते। बाकी जो जॉब निकलती है उसमें ज्यादातर जॉब्स डेपुटेशन पर होती हैं, जहां पे यूथ एंड यंग प्रोफेशनल अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक अलग इशू है। नाउ नेक्स्ट इज लैक ऑफ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट लीडर्स। दे सीरियस लैक ऑफ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट लीडर्स। अगर मैं कुछ इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दूं तो बहुत से ऐसे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्लेम करते हैं, जो काम कर रहे हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे, जहां टॉप पर वो लोग बैठे हुए हैं जिन्हें डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल ही नहीं पता होते। अब इससे नुकसान ये होता है कि जो यूथ एंड यंग प्रोफेशनल जिसके बॉस ऐसा आदमी है जिसको रिस्क रिडक्शन के प्रिंसिपल्स नहीं पता है, वो उसे इन्वॉल्व कर देता है क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में, जिसमें वो फंस जाते हैं और अपनी फील्ड जो उनकी डिजास्टर्स को टैकल करने की फील्ड है उससे वो काफी दूर हो जाते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेंडाई फ्रेमवर्क कहता है, द एक्सपेक्टेशंस जो सेंडाई फ्रेमवर्क कहता है कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इज एवरीवन्स बिजनेस, बट रियलिटी है कि एवरीवन हैज मेड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट देयर बिजनेस। देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस that have literally no experience in field of implementing DRR Act projects, वो डेवलपमेंट प्लानिंग में काम कर रही हैं। मतलब आप चले थे अपने इंटेलिजेंस से फील्ड में क्रांति लाने, बट आफ्टर ऑल दीज राइट मूव्स यू थिंक दैट कि क्या मैंने राइट डिसीजन लिया, तो आप चले थे सिस्टम बदलने, सिस्टम ने आपको खुद बदल दिया। नेक्स्ट थिंग जो कोट मैं लेना चाहता हूँ कि जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ से बदलने की। या मैं यूथ जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की फील्ड में काम कर रहा है उनसे कहना चाहता हूं कि एवरीथिंग इज नॉट गोइंग हंकी डोरी इन आवर फील्ड। मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्लान्स दैट फॉर्म द ब्लूप्रिंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट डू नॉट adhere to disaster risk reduction principles. Still, most of us believe that disaster response is the only thing that matters and disaster risk reduction is a theoretical, fascinating lullaby. There are many organizations who claim to support to achieve sustainable development agenda, sustainable development goals, are using flawed techniques to achieve it. Now, decision is yours. Do we need another 2001 वाला भुज का earthquake और 2013 का केदारनाथ incident to revamp our thought process, or it is a high time? ऐसा कोई इंसिडेंट क्या हमें चाहिए कि हम खुद से अपने थॉट प्रोसेस को रिवैम्प कर सकें कि डिजास्टर रेजिलियंस एक आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं हो जाए, इट इज समथिंग विच वी अचीव इन नियर फ्यूचर। लास्ट
and the most important, कोई भी देश perfect नहीं होता, उसे बेहतर बनाना पड़ता है. I might be sounding bit negative in my concluding remarks, but the truth to be told, there are organizations like NITM and there are many at state level who are working tirelessly to make India disaster resilient, and the process generating a cadre of young DRM professionals who share the same goal. It is a fact that our field is not completely without flaw, but it is us who are going to change it. So this brings to the end of my presentation. I would like to add that it was really not our intention to hurt sentiments of any individual, but our effort was only to instigate and nudge discussions in the right direction so that a conducive, a favorable working environment can be created for engaging the youth in disaster risk reduction and resilience. Thank you very much.